Good morning students. So I hope you all are fine. So today we'll do the topic which is difference between equity shares and preference shares. Clear? In previous videos मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया कि what are the equity shares, what are the rights of equity shares, advantages of equity share and disadvantages. Similarly, what are the preference shares, what are the types of preference shares and advantages and disadvantages of preference shares. Now in today's video what we are going to study basically the difference between equity shares and preference shares. So here you can see the chart of difference. In first row there is basis of difference, second equity shares and third preference shares. Now coming to the first difference. First difference is participation in the management. Now participation in management, I have already told you that equity shareholders are the real owner of the company and also they have a full participation in the management. That means they can participate in the managerial activities of the company. So here they can participate in managerial activities, but preference shareholders do not. Preference shareholders do not have any kind of right to participate in the management. So second difference is voting right. Now voting right also I have clearly said you all in previous video, in previous lecture, that equity shareholders have voting rights. They are the real owner of the company. That is why they have voting rights. They can give their votes while making any kind of decision. Clear? But in preference shares, preference shareholders do not impose such right. They do not have any kind of this voting right. Clear? Now third difference is sequence of dividend. Now what is sequence of dividend? कि उनको किस sequence में dividend provide होता है? So here dividend is paid to equity shareholders after the preference shareholders. That means firstly in first place preference shareholders को priority मिलती है and after that equity shareholders को उनका annual dividend receive होता है. ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि preference shareholders are those shareholders who have some preferential right. तो ये dividend उनको पहले मिलना, this is their first right, first preferential right. Now under preference share, dividend is paid to the preference shareholder in first place, as I said you earlier, कि उनको पहले first place पे preference shareholders को dividend मिलता है and after that equity shareholders को. Then sequence of refund of capital is your fourth difference. Now बेटा I have already said you that refund of capital नहीं दिया जाता in the lifetime of the company. कंपनी अगर चल रही है तो कोई भी कैपिटल रिफंड नहीं होता टू द इक्विटी शेयर होल्डर एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. अगर तो कंपनी की लाइफ अभी है चल रही है तो कोई भी रिफंड नहीं होगा. बट इफ द टाइम इज ऑफ लिक्विडेशन, मतलब वाइंड अप का टाइम चल रहा है, लिक्विडेशन का टाइम चल रहा है, कंपनी बंद होने वाली है, इन दैट केस कैपिटल इज रिफंडेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स आफ्टर द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. दैट मीन्स यहाँ पे भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंशियल राइट मिलेगा कि उनको पहले कैपिटल रिफंड होगी एंड आफ्टरवर्ड्स इक्विटी शेयर होल्डर्स को. क्लियर? सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रायोरिटी मिलती है एट द टाइम ऑफ द लिक्विडेशन. सेम प्रायोरिटी इज गिवन टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एट द टाइम ऑफ द liquidation. Now fifth difference is convertibility. Now what is convertibility? I have already told you. Convertibility means कि after a period of time अपने shares को अगर equity share, जैसे like I have told you, one type of the preference shareholder, that is convertible preference shares. Now those are that shares which can be converted into equity shares after some period of time. क्लियर? कुछ टाइम के बाद उनको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता इक्विटी शेयर्स के अंदर. देयर इज नो सच केस इन द इक्विटी शेयर्स. दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड. उनको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता. बट इन प्रेफरेंस शेयर्स दे कैन बी कन्वर्टेड. एग्जाम्पल है इसकी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स. इसकी मैंने आप लोगों को टाइप कराई थी, कन्वर्टेबल एंड इनकन्वर्टेबल. तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या कर सकते हैं? आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम दे कैन कन्वर्ट देयर शेयर्स इनटू द equity share. Now sixth basis of difference is permanency of dividend. Now what is permanency of dividend? Basically what is a dividend? Dividend is a part of profit जो कंपनी किसको देती है? डिस्ट्रीब्यूट करती है among the shareholders at the end of the year. Clear? In return शेयर होल्डर्स को जो इन्वेस्ट करते हैं, इन रिटर्न उनको क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है. तो डिविडेंड बेटा आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जिस साल कंपनी को प्रॉफिट होता है कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है डिविडेंड को. बट अगर हर साल तो कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो सकता
है ना। अगर जिस साल कंपनी को लॉस हुआ है उस साल कंपनी डिविडेंड नहीं पे करती इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो यहाँ पे डिविडेंड अंडर इक्विटी शेयर्स डिविडेंड इज अनसर्टेन। अनसर्टेन है, कोई सर्टेन पीरियड नहीं है, कोई सर्टेन अमाउंट नहीं है कि उनको हर साल मिलनी है। डिविडेंड इज अनसर्टेन अंडर द इक्विटी शेयर्स एज इट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग। ये फ्लक्चुएट होता है। फ्लक्चुएट क्यों होता है बेटा? प्रॉफिट की वजह से ही फ्लक्चुएट होता है। जिस साल ज्यादा प्रॉफिट हुआ उस साल उस अकॉर्डिंग उनको ज्यादा डिविडेंड मिल गया, जिस साल कम प्रॉफिट हुआ उस साल कम प्रॉफिट के अकॉर्डिंग उनको डिविडेंड मिल गया, और जिस दिन लॉस हुआ तो उनको डिविडेंड मिला ही नहीं। सो इट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग। बट अंडर द प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड इज फिक्स्ड एंड अनसर्टेन एंड सर्टेन। अंडर द प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड इज फिक्स्ड एंड सर्टेन। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड प्रोवाइड किया जाता है और प्लस उनके डिविडेंड को अकुमुलेट भी किया जाता है अगर क्या हो, किसी साल लॉस हो। लाइक आपको एग्जांपल दी थी मैंने, आपको टाइप बताई थी कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स की, तो उसमें मैंने आपको बेटा यही बताया था कि उनका जो डिविडेंड है जिस साल लॉस हुआ है वो अकुमुलेट हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर जब भी प्रॉफिट होगा उनको उस ईयर का प्लस प्रीवियस ईयर का डिविडेंड इकट्ठे मिल जाएगा। क्लियर? सो दिस इज द 6th difference. Now 7th difference is redemption. Now what is redemption? Under the equity shares they cannot be redeemed. Equity shareholders अपने shares को redeem नहीं कर सकते, लेकिन under the preference shares they can be redeemed. मैंने आपको बताया था, इसमें टाइप बताई थी redeemable preference shareholders की, redeemable preference shares की। तो जिनके पास रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है दे कैन रिडीम देयर प्रेफरेंस शेयर्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ द टाइम। क्लियर? सो बेटा दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तो आप लोगों को भी ये टेबल एज इट इज ही बनाना है। क्लियर? आपको याद करना है। आई होप यू हैव नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। दे बोथ आर द लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, दोनों ही लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस के, बट इनका डिफरेंस क्या है ये आप लोगों को अब अच्छे से समझ आ गया होगा बाय वाचिंग दिस प्रॉपर टेबल ऑफ डिफरेंस। क्लियर? सो दिस इज ऑल फॉर योर टुडेज टॉपिक और टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।